understand about how Active Directory can help us. Azure Active Directory, not on-premises AD. Let's talk about the Azure Active Directory services कि Azure AD किस तरीके से काम करता है और हम किस तरीके से अपने Azure AD को on-premises AD से compare कर सकते हैं. Right? So first question, not question, first topic is related to understand about identity and governance. This is first module for Azure Administrator. AZ104 के लिए identity and governance. This is the first module, which is really important क्योंकि बाकी के जो resources है ना AD से associated है. एंड अगर हम बाकी सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे फिर से हमें एडी के बारे में डिफाइन कराना पड़ेगा. कंप्यूट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी. नेटवर्किंग में भी एडी का पार्ट आएगा, डेटाबेस में भी एडी का पार्ट आएगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. ऑल गुड. ठीक है जी. मॉड्यूल फर्स्ट, आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस. So in this part, I'm going to start from the very basic. So that's why I'm going to categorize Microsoft Intra ID versus Windows ADDS. Is that okay? ओके, मुझे लगा शायद Microsoft, एक ही टाइप की सर्विस होती होंगी दोनों. nahin, both are different to each other. Microsoft Intra ID is also considered as Azure Active Directory, and second is Azure ADDS. Azure ADDS, Azure Active Directory Domain Services, right? Azure Active Directory Domain Services that you need to set up with the help of on-premises resources. Let's talk about the gap between both. Starting from the on-premises, install and configure any server operating system. Yes, it's mandatory. Install any server operating system, maybe 2016, 2019 and 2022. पहला ये step होगा. Then install ADDS service. Number ओके. third, configure AD objects and containers. Number four, usage of on-prem AD. These all are the points that we need to know in case of on-premises Active Directory domain services. Let's talk about Microsoft Entra ID. So first of all, it's a cloud-based domain service, right? Cloud-based domain service or AD service. Number second, we can configure objects. यहाँ पे भी हमें objects and एक से मैं कॉल पिक कर लूं एक मिनट. हाँ, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम, जस्ट अ yeah, सेकंड. sure. जी, रियली सॉरी, कॉल कट हो It's गया. okay. It's okay. Configure objects and the built-in role that provided by Microsoft Azure. It जी. will help you to set up Azure AD hybrid setup. In case of Azure AD hybrid setup, that give us a two different option. Azure AD join and Azure AD connect. ओके, एज़्योर एडी जॉइन ऐसा भी कुछ होता है? Yep. अच्छा. Connect and join both are different to each other, right? ओके, ओके. And both require a totally separate method to perform the task.
चलो अच्छा नेक्स्ट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लस SSPR एक ही में कर देते हैं हम इसको, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट. ओके It's our responsibility, we should know about. Next, AD licenses and security. These all are the points that we need to know in case of difference between on-premises AD or Windows Active Directory Domain Services to Microsoft Entra ID. All ओके good? हम्म Now, छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. This is our office premises. In on-premises office premises, we set up one domain with name of maybe class.com. This is our domain controller that we established in 2016, and n number of client machines are available. These all are client computers. So client in the sense it may be Windows 10 or it may be Windows 11 operating system, I think. Correct? Both the systems are connected through the local area network. Both the machines are connected through the LAN cable. All good, please confirm. यस Now, the AD means class.com can help us to create users, can help us to manage computers, can help us to manage groups and organizational unit, I think, right? So whenever we set up user, like I'm going to create user with name of test and कोई सा भी नाम दे देते हैं GCP, ठीक है? These users you can use to log in your client computer, I think. हमें क्या करना है, इन क्लाइंट मशीन को डोमेन से वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना देना है. ओके इफ यू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, आप एडी में यूजर बनाएंगे और उनको क्लाइंट पे लॉगिन करेंगे. नहीं क्लियर हो रहा है? जी मतलब मैं समझ ये जानना चाह रहा हूँ वर्क ग्रुप क्या है और डोमेन में डालने की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? जैसे अभी आपने बताया कि हमारी किसी से बात हुई, XYZ क्लाइंट से बात हुई, दे आर टेकिंग केयर ऑफ मोर देन 700 यूजर और 800 यूजर, बट कंफ्यूजन ये है कि वो बोल रहे हैं कि हमने एडी नहीं सेटअप कर रखा है. सो विच इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द मशीन्स, क्योंकि हुँ, जब आपके पास इन्वायरमेंट में एडी नहीं है ना, यू आर अनेबल टू कंट्रोल एनी कंप्यूटर्स. ओके, देखो दो चीजें होती हैं, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट. आईटी के केस में ना, जैसे हम नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो यू नो दैट इन केस ऑफ सेटअप आवर नेटवर्क एनवायरनमेंट. 1 सेकंड 1 मिनट 1 सेकंड कैन आई जस्ट पिक इट अप? ओके ओके. हेलो? रियली सॉरी हाँ जी, प्लीज़। Okay, so we are talking about okay, we are trying to understand about the concept of work group and networking, I think, right? जी, जी। So I wanted to know about, like, I wanted to make a communication between my laptop and desktop. So how many method we have? सेम एनवायरनमेंट में है वो? आई एम न्यू, आई हैव अ मल्टीपल डिवाइसेस, लैपटॉप भी मैंने खरीद रखा है, डेस्कटॉप भी खरीद रखा है, एंड आई वांटेड टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. सो हाउ प्राइवेट मेनी आईपी मेथड से वी कर हैव? लेंगे, एक तो उनका प्राइवेट आईपी जो होगा ओके, व्हाट और अबाउट एक मीडिएटर? Which medium we need to use to make a communication? IP is a just address. हुँ, आईपी तो बाद में आएगा ना, आईपी तो बाद में आएगा सबसे लास्ट में. पहले तो हमें हाँ, मीडियम सेट करना पड़ेगा. सो मीडियम में दो ही मीडियम हो सकते हैं अपने पास, एक तो वायर्ड हो सकता है, एक वायरलेस हो सकता है. वायरलेस हो सकता है, यस, राइट, यस। दीज टू लैन केबल हो मेथड. सकता है एक तो। लैन केबल हो सकता है या फिर आप वाईफाई लगवा लो. करेक्ट, करेक्ट हाँ, मतलब वैसे The, करेक्ट, these करेक्ट, करेक्ट। two method can help us to make a communication. आईपी वगैरह तो डेफिनेटली देनी ही पड़ेगी, विदाउट एड्रेस तो कुछ होने वाला नहीं है. ओके, जी। नेक्स्ट. We can easily recognize कि भाई बंदा want to make a communication between devices, तो आपने फटाफट reply कर दिया, please proceed with wireless and with, please proceed with, or if you convenient, if you okay with wired, तो आप wired से भी जा सकते हो, right? This is physical communication. Both are हुँ, considered as a physical communication.
जी। As it is, we also able to set up our logical communication. अभी हमने ओके। फिजिकल कम्युनिकेशन में तुरंत के तुरंत क्लियर कर दिया कि यू कैन प्रोसीड विद वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है, बंदे को समझ में आ गया कि ठीक वो वायरलेस हुँ, वायर एंड वायरलेस. Second, we have a different types of communication, which is considered as a logical communication between devices, and it is also categorized in two different part. One is P2P and another is domain client. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, let me show my client operating system. This is our Windows computer, right? And हुँ, the Windows machine that the Windows operating system that I installed directly on the hardware. Open cmd sysdem.cpl. This is the command that you can use to open the properties. अब आपका जी। सिस्टम जो है ना, ये कहाँ पे है अभी? ये वर्क एक ग्रुप वर्क पे ग्रुप है. का पार्ट है। हाँ, वर्क ग्रुप. द मीनिंग ऑफ वर्क ग्रुप इज अ टाइप ऑफ P2P, peer to peer networking. ओके, इफ यू सेटअप अ डोमेन इन द इन्वायरमेंट, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई डोमेन है, सो आपको उस डोमेन की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी. अच्छा, ओके, वन ओके। मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड. चलो छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे डोमेन भी आपको दिखा देते हैं. इट मे बी टेक टाइम टू ओपन, बट लेट मी ट्राई टू टर्न ऑन आवर डोमेन कंप्यूटर. जी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वर्क ग्रुप जब हम बात करते हैं तो वो एक लोकल लैन का पार्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग एक डोमेन में हैं, हम्म. तो मल्टीपल रिमोट ऑफ़िस, ब्रांच ऑफ़िस भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। क्या ये बात सही बोल रहा हूँ या फिर uh, See, actually domain is basically a type of centralized control device, हाँ। right? Without domain permission, no one can make any changes with their services. हुँ, हुँ। Think about, अगर हमने क्लाइंट को या अपने ऑफिस में, यू आर ऑनर ऑफ एक्स वाई जी कंपनी एंड यू आर टेकिंग केयर मोर देन 100 एम्प्लॉयज एवरी डे, ठीक है, हुँ। और हर एक मशीन जो है आपने वर्क ग्रुप में दे रखी है, सो यू आर एनेबल टू ट्रैक एवरीवन. हुँ, हुँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कब किया, कौन सी साइट ओपन की, कौन सा डेटा डाउनलोड किया, कौन सा अपलोड किया, कितने बजे लॉग इन किया, कितने बजे लॉग आउट किया, यू आर एनेबल टू ट्रैक एवरीथिंग. बट द डिवाइसेस, द क्लाइंट मशीन्स आर कनेक्टेड विद डोमेन कंट्रोलर. आपको किसी से डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. You can हुँ। directly just need to open the logs of our Windows domain controller machine, and within second you can identify भाई आपने 10:15 पे लॉग इन किया है और हुँ। 5:10 पे आपने लॉग इन लॉग आउट कर दिया है. हुँ, हुँ। Right? So domain is basically a type of centralized control device which is responsible to control not only the client operating system. आप अपने प्रिंटर को मैनेज करते हो, आप अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को मैनेज करते हो, आप अपने सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को मैनेज करते हो. ओके, ओके। सिक्योरिटी. डोमेन। Exactly. Domain is responsible to manage all the resources, not only the client की Windows 10 और Windows 11 को ही entertain करेगा, नहीं. It is responsible to control and manage all types of resources जो भी ऑफिस में आपने implement कर रखे हैं. ओके और वर्क ग्रुप जो होता है वो यूज़र लेवल तक ही सीमित है। Exactly. वो ऑनर है, वो किसी की नहीं सुनेगा. Think about. ऑनर इन द सेंस कि वो आपके लैपटॉप का, डेस्कटॉप का ऑनर है. यू आर, इफ यू आर लॉग इन योर मशीन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ना, सो यू कैन से दैट कि आपके सिस्टम पे आप कुछ भी कर सकते हैं. बट अगर हुँ। आपका सिस्टम डोमेन के यूजर से लॉग इन हो रहा है, आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर डोमेन के यूजर से लॉग इन हो रहा है, तो आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी रिमूव नहीं कर सकते, एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक आपका डोमेन आपको ऑथराइज ना करे.
नहीं मतलब कि डोमेन एक बड़ी चीज़ होती है, वर्क ग्रुप कैसे? Definitely, domain is a one of very important term or terminology for every IT and non-IT organization. ठीक है। तो मतलब जिसके वर्क ग्रुप का अगर मैं बोलूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क ग्रुप जो है, वो सिर्फ़ जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि हम्म, वो सीमित रहता है, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू यूज़र्स, एग्जैक्टली, डेस्कटॉप, लैपटॉप करेक्ट, बस और करेक्ट, उस पर्टिकुलर डिवाइस में क्या चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डोमेन की, तो वो यूज़र्स, पॉलिसीज़ जितने और भी डिवाइसेज़ हैं, वो सबको कवर करता है। राइट, राइट, राइट। सो बेसिकली वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग जो हम सेटअप करते हैं ना, द वर्क ग्रुप नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बिजनेस, बहुत ही स्मॉल बिजनेस जिसको हम आईटी नॉन आईटी में काउंट भी नहीं कर सकते, जी। राइट? सो द स्मॉल बिजनेस लाइक एज यू कैन से दैट कि साइबर कैफे हो गया, हुँ, डेटा एंट्री पॉइंट हो गया, जो छोटे छोटे हुँ, ऑफिस होते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, शॉप्स हो गई, है ना? यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, यहाँ पे अगर मोर देन वन कंप्यूटर लगे हैं एंड दे वांटेड टू शेयर द इंटरनेट टू ईच अदर, अब 10 मशीनें हम यूज कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हम 10 इंटरनेट कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें। I wanted to share the internet connection to all the every machines which are available. ठीक है। We can use workgroup network environment for data sharing, file sharing, folder sharing, screen sharing, and internet sharing. That's हुँ, it. हुँ। इसके अलावा कोई यूसेज नहीं है। अच्छा, In the work group machine, all the users, all the users are self owner. अगर मैं अपना तो डेस्कटॉप अपने एडमिन से लॉगिन किया है और हमारा जो सिस्टम है विच इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप फॉर्मेट, सो नो वन कैन कंट्रोल ऑन माय मशीन। कोई हमें मींस पॉलिसी नहीं सेंड कर सकता, कोई हमारे सिस्टम पे एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, लाइक दैट। ओके, ये एक बार आप मेरे को इनका है ना कोई यूज़ केस सिनेरियो के बिहाफ़ पे बता सकते हैं? कि कहाँ पे हम वर्क ग्रुप यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम डोमेन यूज़ करते हैं? 99% environment IT industry must need to set up their own domain controller, 99। हाँ। और जो जो अपने पास इसकी बात कर रहे हैं हम अपने लाइक वर्क ग्रुप की, तो जस्ट बेसिक बिजनेस लाइक फोटो स्टूडियो हो गया जो बहुत सारे मशीनें लगा रखी हैं, साइबर कैफे हुँ, हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, दे ऑलवेज ट्राई टू यूज वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट, सिंपल। ओके। अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे आपको, कि हमारे हम्म, कॉलेजेस में ये होता था जब हम लैब करने जाते थे, तो करीब 50-60 कंप्यूटर लग रहे हैं वहाँ पे। ठीक अब है। उन 50-60 कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए एक आगे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बैठता था, सबसे आगे हाँ, ही आगे, हाँ, 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 जो हाँ, कॉलेज का ही बंदा होता है, कॉलेज का टीचर होता है, लैब टेक्नीशियन जो होता है, ठीक है, तो वो बैठा रहता था और उससे हम लोग कुछ भी चीज़ माँगते थे, तो वो कहता था कि यहाँ पे मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, शेयर ड्राइव में जाके उठा लो। तो उठा कहीं न लो। कहीं उस आदमी का इन सारे डिवाइसेज़ के ऊपर एक कंट्रोल तो रहता है ना? नहीं, नहीं, वो फाइल शेयर तैयार कर रखा था। वो फाइल शेयर तैयार कर रखा था। अगर डोमेन है तो डेफिनेटली उसको अपने यूजर से जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। जी। हेलो।
Yeah, Rajat, can you hear me? Hello. हाँ जी, आई कैन हियर यू। ठीक है, ठीक है. So we are trying to understand about the concept of work group and domain controller, right? जी। So see, it is applicable for the small किसी भी production environment में, चाहे वो IT हो या नॉन IT हो, किसी भी environment में वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग का इस्तेमाल नहीं करते, right? We can use work group networking only for the basic purpose, like घर के अंदर हम कर सकते हैं इसका यूसेज, जैसे मल्टीपल डिवाइसेस है अपने पास एंड यू वांटेड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन ईच अदर, देन वर्क ग्रुप कम इनटू द पिक्चर, जहां पे हम तो ऑनरशिप नहीं रखना चाहते. जो मैंने अभी आपको कॉलेज वाला एग्जांपल दिया था, हम्म. वहां पे उन केसेस में वर्क ग्रुप काम में नहीं आएगा। नहीं, वर्क ग्रुप है. मैंने टीसीएस के लिए बहुत सारे एग्जाम कराए थे इन ईयर ऑफ 2013 14 15 में, टीसीएस के लिए मतलब टीसीएस आयोन, हाँ, तो वहां पे मेरी पहली नौकरी वही थी, मेरी फर्स्ट अरे नौकरी वही थी। ग्रेट. सो मैं था किसी दूसरे के पेरोल पे, बट उनके लिए काम करता जीनियस था आउट. कंसल्टेंट, जीनियस कंसल्टेंट। नहीं, मैं सीएमएस आईटी सर्विसेज से था. अच्छा, सीएमएस, ओके। मेरे एक कलीग सीएमएस से ही हैं, ललित कुमार शर्मा। अच्छा, तो वहां पे क्या होता था ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती थी कि हम केवल वहां पे सर्वर सेटअप करते थे जिसमें एग्जाम पेपर रहता था. बिल्कुल, एग्जैक्टली, उनका लैब बिल्कुल। था, उनका लैब हम लोकल एरिया नेटवर्क पे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते थे, वो सर्वर फिट करते थे, एग्जाम हाँ, स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले उसको शेयर कर देते थे. बिल्कुल। ठीक है. सो बेसिकली ऑल द मशीन्स आर अवेलेबल इन वर्क ग्रुप. वहां पे ओके। ना हम कोई एडी इंस्टॉल करते थे, ना हम कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ना कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते थे, सिर्फ अपने हम्म, डिवाइस वहां पे जाके कनेक्ट करते थे, सिंपल सी डिवाइस बस. जी। With the help of software, we are able to manage and control all the machines. More than 100, more than 200 machines are available. They all connected with the single computer. जी। As it is, जब डेटा शेयरिंग की बात आती है ना, तो इट इज नॉट अप्लीकेबल कि आपको डोमेन लगाने की जरूरत पड़ेगी. नहीं, नहीं चाहिए डोमेन हमें. तो कॉलेज के अंदर यू नो दैट इफ यू वांट टू सेट अप द डोमेन कंट्रोलर ना, तो आपको एक डेडिकेटेड इंजीनियर रखना पड़ेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होना चाहिए, एटलीस्ट जिसको एडी के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. और कॉलेज में हम्म, एडी की रिक्वायरमेंट है भी नहीं. द ओके। मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बस उसमें से हमने एक को डिसाइड कर लिया है कि इसको मेन सर्वर मेन मशीन मान लेते हैं. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द डेटा. फाइल सर्वर उसको बना दिया, और फाइल सर्वर में जरूरी नहीं कि हमारी मशीन सर्वर डोमेन का पार्ट हो, वो नॉर्मल वर्क ग्रुप में भी है तब भी फाइल सर्वर है. अच्छा, ठीक है। क्लियर. ओके। चलो. इसमें एक्चुअली देखिए, वो मैं समझ गया, लेकिन है ना, मुझे सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि यूज केस क्या रहता है कि वर्क ग्रुप को हम कहाँ यूज करें, हम्म. या जैसे कि इस केस में सिर्फ डोमेन जा सकता है, इस केस में सिर्फ वर्क ग्रुप जा सकता है। मुझे ये चीज समझनी है। नहीं, वर्क ग्रुप का यूसेज प्रोडक्शन में नहीं है. 1% भी यूसेज नहीं है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में. ठीक है. नहीं, वो ठीक है, वो तो जैसे ये तो एक डेटा हो गया कि उसमें यूज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जैसे यूज हो रहा होगा ना, जैसे अभी कॉलेजेस वगैरह में हमने। एग्जैक्टली जो डेटा डेटा एंट्री के पॉइंट्स हैं, जो साइबर हम्म, कैफे वगैरह अवेलेबल हैं, जो कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह कराए जाते हैं, ठीक है ना, हम्म, जो प्रोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे 500 600 बंदे 1000 बंदे एक साथ बैठ के एग्जाम देते हैं कंप्यूटर पे, वो सभी हम्म। मशीनें वर्क ग्रुप पे रहती हैं. उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब रीजन जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा रीजन क्या। इसका ये है कि डोमेन का जो एक्सपेंसेस है ना वो काफी ज्यादा है. उसके लिए मैन पावर, उसके लिए रिसोर्स अरेंज कराना, उस पे कंट्रोलिंग प्रोवाइड करना थोड़ा सा टफ है. जो मैन पावर हम वर्क ग्रुप के लिए मींस इन कॉस्ट ऑफ 1 लाख सेटअप कर पाएंगे, वही डोमेन कंट्रोलर के लिए हार्डवेयर वगैरह मिला करके 10 लाख के आसपास जाएगा, और उसका कोई यूसेज नहीं है. हम 2 घंटे के एग्जाम के लिए डोमेन नहीं लगाएंगे. ओके। हम अपना खुद का सर्वर सिस्टम ले जाएंगे, मेन सिस्टम ले जाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, और जो उनका एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसी नेटवर्क इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके हम अपने पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिजिटल फॉर्मेट में. हम्म, राइट.
डोमेन का मतलब है आपको हर एक मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा, जी। एंड इट विल टेक मच टाइम। ओके। दैट्स वाई किसी कंपनी में अगर डोमेन xyz.com कॉन्फ़िगर कर दिया गया तो वो इन फ्यूचर नहीं बदलेगा। हम्म। बहुत रेयर केस है कि उनको डोमेन बदलना पड़े, अदरवाइज वो डोमेन नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है, बहुत सारे यूजर्स की डिपेंडेंसी हो जाती है। हम्म। तो वो कभी भी डोमेन के नेम के साथ चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा। ऑल गुड। ठीक है, एक बार मैं आज इसको खुद से भी पढ़ूंगा, कुछ डाउट होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। वैसे आप उसमें टीसीएस आयोन में थे, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर कौन थे? मुदित माथुर वगैरह कोई थे क्या? नहीं, 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 मैं शशांक जोशी करके था एक बंदा। अच्छा, अच्छा। 2015 हम तो 2015 2014 की बात कर रहे हैं मैं। मैंने 2012 में जॉइन करा था और अच्छा। 2013 में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये कोई नेटवर्किंग वगैरह का काम होगा, वहाँ जाके कुछ नहीं बैठे रहो और हाँ, कोई काम नहीं था कुछ भी उसमें। नहीं था। हाँ, कोई काम नहीं मैं था कि जिस जहाँ पे एग्जाम होना है वहां पे अपना पूरा सेटअप लेकर जाओ। बहुत सारी हुँ, कंडीशंस थी कि आपको किसी से बात नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस भी हुए थे कि कैश लेकर के पेपर लीक कराना। तो वो बहुत करेक्ट, सारी करेक्ट। कंडीशन थी कि इमीडिएटली वो कर दिया जाएगा। ठीक है, जी, सीखने को उतना कुछ नहीं था। कुछ भी कुछ नहीं था ना, मतलब इनफैक्ट कुछ हम भी लोग नहीं था। मैं तो आप कुछ नहीं कर करेक्ट, रहे हो, आप अपना सिस्टम लगा रहे हो, वहां पे नेटवर्क केबल लगा दिया, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करा दिया, सारे बंदे आए अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन किए, चले गए, फिर सर्वर उठाया, फिर घर वापस। वही 2 मैंने है ना? 8 महीने काम किया था वहाँ पे, 8 महीने के हाँ। अंदर ही छोड़ दिया था। हम्म। मेरे कोई रिपोर्टिंग मैनेजर थे मिस्टर भुवनेश भार्गव, वो जयपुर रीजन देखा करते थे वो। ओके। जी। नहीं, मेरी टीम में ये थे शशांक जोशी और एक बंदा था, अम, मनीष जोशी और शशांक भारद्वाज। अच्छा, तो हम शशांक भारद्वाज। हाँ, 3 से 4 बंदों की जो ना टीम थी प्रॉपर तरीके से, तो हम लोग एक ही जगह पे मूव करते थे। हाँ, दो वो इधर कोई गए, उसके दो अंदर उधर गए। फॉर्मेट हुआ करता था, हायरार्की होती थी, मैनेजर फिर एग्जैक्टली। सिटी हेड टाइप का भी कुछ हुआ करता था। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, हम वो। लोग तो चंडीगढ़ गए, दिल्ली भी आए हम लोग करने के लिए। चंडीगढ़ हाँ, में हाँ। रायत बारा कॉलेज के अंदर सेटअप करा है हम लोगों ने। अच्छा। दिल्ली में हमने इनफैक्ट कई मेरा लोकेशन लोकेशन हैंडल की है, अच्छा, गाजियाबाद गए हैं, नोएडा गए हैं, आपका लखनऊ गए हैं, बहुत सारी जगह पे। अच्छा इनफैक्ट मेरा तो एक बार कोई टाटा का एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 दिन पहले सेटअप करा है और अगले दिन मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। अच्छा। हाँ, ये 2013 की बात है। हम्म, 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 हम्म। क्या चलो, कोई नहीं। तो वर्क वही ग्रुप डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट एज्योर। सी, टोटल एडी का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तभी हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर पाएंगे। जी, जी। Because the gap, only the difference between on-premises AD and Azure AD, the on-premises AD is a type of IaaS, and the Azure हाँ, AD is a PaaS, IAS एंड पास राइट। infrastructure as a services and platform as a services. Both are different to each other. The जी। meaning of PaaS is a basically all activity managed by provider, हुँ, 75% task managed by provider, 25% task managed by you and me, means customer or users, जो पोर्टल को हैंडल कर रहा है। आई थिंक जी, इज दैट करेक्ट? जी। आईएएस के अंदर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टॉल सर्वर मशीन, उसके ऊपर एडी इंस्टॉल कर रहे हो, फिर उसके बाद सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हो, राइट? बट अगर हम बात करें अपने पैस सर्विस की, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू डू एनीथिंग। आपका काम है यूजर बनाओ, यूज करो, यूजर बनाओ, यूज करो। बैकएंड में क्या हुआ, कैसे इंस्टॉल हुआ, वो हमारी हेडेक नहीं है। हुँ, ऑल गुड। अभी थोड़ा जी। सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली दिस इज द बैकबोन। यस। हुँ, ठीक है। अब किसी भी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करो, बट एडी का कॉन्सेप्ट इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स, यू कैन से दैट इट्स अ मैंडेटरी। हुँ, हुँ, इसके बिना हुँ, कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक है। सिक्योरिटी भी इन फ्यूचर प्लान करोगे कि एज्योर सिक्योरिटी पे चलो हाथ पैर मारते हैं, एडी नहीं है तो सिक्योरिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जी। डू वन थिंग, जो अभी क्लियर हो पाता है, जो आपको अभी क्लियर हो पाता है वो ठीक है,
प्रैक्टिस करना एंड आई ट्राई टू शेयर सम लिंक्स रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी। मैंने पूरा सिस्टम एडमिन की सीरीज बना रखी है, तो उसमें से कुछ आपको हेल्प के लिए रेफरेंस के लिए ट्रांसफर करूंगा एंड यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द गैप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एंड एज़्योर एडी का पार्ट? जी हाँ। ठीक है ना, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। ओके, ये दिस इज ऑन प्रोमाइसेस और हमने मशीनों को चेंज किया किसमें, वर्क ग्रुप से हटा करके किसमें ले गए, डोमेन का पार्ट ले गए। सो इफ यू कन्वर्ट योर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन इट्स लुक लाइक दिस, stm.cpl। सी दिस इज द पैनल जहां पे आप जाकर के कंप्यूटर में जाकर के चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे अपने डोमेन का नाम देंगे। एंड थिंक अबाउट, अगर आपके पास 1000 मशीनें हैं तो 1000 मशीनों के साथ सेम करना पड़ेगा। ओके। नाउ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू डू दैट? हमें ये टास्क परफॉर्म करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, हमें ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सी, हम्म। ओके, यही एक्चुअली दैट इज द ओनली डाउट। ये मतलब देखिए, वर्क ग्रुप आपने मुझे बता दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट हमें कब बैठती है, जब हमें एक छोटा सा सेटअप करना है या फिर हमें अ, उन सब मशीन्स को इंडिविजुअली कंट्रोल करने की कोई एज़ सच नीड है नहीं, हम्म है ना? बट डोमेन के अंदर ये है कि सिंस वी आर इनटू अ प्रोडक्शन नेटवर्क, हम्म कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहाँ पे किसी भी यूज़र की कोई भी एक्टिविटी वो डायरेक्टली बिज़नेस को इम्पैक्ट करती करेक्ट। है ना? तो दैट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग डोमेन इंस्टेड ऑफ अ वर्क ग्रुप। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन आता है कि जब हम वर्क ग्रुप यूज़ करते हैं, तो वर्क ग्रुप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कॉलेज का सिनेरियो है या फिर एक किसी साइबर कैफ़े का सिनेरियो है, तो सपोज़ साइबर कैफ़े में जाके मैं कोई इलिसिट मटीरियल एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी मैंने हम्म टॉरेंट यूज़ कर लिया या फिर मैंने कोई पोर्नोग्राफ़ी मटीरियल यूज़ कर लिया, कुछ कुछ भी तो हो। वो डायरेक्टली मेरे वो एक तरीके से मैं इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। जी, तो यानी कि कल को छापा पड़ सकता है, रेड पड़ सकता है, तो इट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट माय बिज़नेस। तो यहाँ ये दिस इज़ द एक्चुअली मेरे को डाउट, मेरे को यही समझना है। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मैं आपको बताऊँ, इंडियन क्लाइंट्स इतने दिमाग से थोड़े पैदल होते हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता कि वो डोमेन यूज़ करना है उनको या उनको नहीं करना है, वर्क ठीक है। ग्रुप यूज़ करना है। यहाँ ठीक है, दैट्स वेयर माय डाउट इज़। नहीं सी एक्चुअली डेफिनेटली अगर हम बात करें साइबर कैफे वगैरह की या फिर नॉर्मल छोटे बिजनेस की ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेन इन्वायरमेंट को, सिंपल सी बात करें तो। मेन तो यही है कि वो पैसे की वजह से नहीं कर सकते। even if we talk about the बैंक ब्रांच ऑफ बैंक्स जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड किए हैं अपनी ब्रांचेस को, लाइक एसबीआई हुँ, की हुँ। बात कर लें या फिर जो नॉर्मल आपकी पब्लिक ब्रांचेस हैं, वो बहुत हुँ, सारे हुँ। रूरल एरिया में जाके ओपन कर रखी हैं। हुँ, हुँ। डू यू थिंक वहां पे सर्वर ये लगाएंगे? नहीं लगाते, वहां पे नहीं, नहीं। आरओडीसी लगाते हैं। हुँ। उस ब्रांच में ये आरओडीसी लगाते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। डोमेन है हुँ, बट रीड हुँ। ओनली है, ओनली बिकॉज ऑफ कोई बंदा राजी ही नहीं वहां जाने के लिए। क्लियर? प्लस वहां पे अगर वो बंदा पहुंच भी गया ना, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी उसको, ओके। चेंजेस की अथॉरिटी उसको नहीं दी जाएगी। अगर उस पर्टिकुलर मशीन में कोई चेंजेस करना है तो ओनली रीजनल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब एक छोटा सा चेंजेस करना है ना, तो वो इंतजार करेंगे रीजनल ऑफिस का कि भाई वहां का इंजीनियर जो है ना इस पे चेंजेस करें, देन इट विल रिफ्लेक्ट टू द ऑल ब्रांचेस। ओके। क्लियर? हुँ, हुँ। चलो, I'm going to add one more point। यहाँ पे ना थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। सो
द डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, जैसे अभी हमने ये विंडोज 10 मशीन अपनी विंडोज 11 मशीन हमने देखी, एंड दिस मशीन इज द पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप, आई थिंक, राइट? द मशीन इज पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप, मीन सेल्फ ऑनर। बट इफ यू पुट योर डोमेन कंट्रोलर, जैसे हमने यहाँ पे एक डोमेन बना रखा है विद नेम ऑफ cloud.com, एंड डोमेन यू कैन इंस्टॉल ओनली एंड ओनली कहाँ पे? ओनली एंड ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कुछ भी हो सकता है, 19 हो सकता है, 2022 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी वर्जन हो सकता है, ठीक है? हम्म। तो दिस वन इज अवर डोमेन कंप्यूटर, या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज माई एडी कंप्यूटर, एंड n नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल। यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स मशीन्स आर अवेलेबल। और क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लाइंट? मतलब विंडोज 10 या 11। डेस्कटॉप इनकी कैट विंडोज की मशीन्स। विंडोज में भी 7, 8, 10, 11 ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, जितने एक्सपी भी वगैरह को नहीं कहते हैं। नहीं, एक्सपी भी क्लाइंट है ना। एक्सपी क्लाइंट है, 2000 प्रोफेशनल क्लाइंट है, ठीक है? विंडोज जी। 98 क्लाइंट है, विंडोज 95 क्लाइंट है, विंडोज मिलेनियम क्लाइंट है। ये सभी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से ट्रीट बट करेंगे हम। अभी आजकल तो यूज में आते नहीं है। हमें तो मालूम करना चाहिए ना, हमें वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री। हम्म। यू कैन से दैट इनका पेयर बनाना है आपको, इनका इनका पेयर बनाना है। ओके। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया विच इज एंटी सर्वर, हाँ 1995 में, ठीक है? और जी। उस टाइम पे जब एंटी सर्वर इन्होंने लॉन्च किया तो ठीक है, सर्वर ओके हो गया। अब उसके कंपेटेबल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होगा? तो इन्होंने 95 लॉन्च किया था, विंडोज 95। ओके। फिर उन्होंने 2000 सर्वर लॉन्च किया जिसका कंपेटेबल था विंडोज प्रोफेशनल 2000। फिर 2003 लॉन्च किया इन्होंने सर्वर 2003, जिसकी कंपेटेबिलिटी थी विंडोज एक्सपी के साथ। हम्म। फिर 2008 लॉन्च किया कंपेटेबल क्लाइंट विंडोज 7। फिर हम्म। 2012 कंपेटेबल क्लाइंट विंडोज 7, 8 एंड 10। Right now we have a Windows Server 2016, 2019 and 2022, हम्म। और जिनके सपोर्टिव क्लाइंट माना जाता है Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट नाउ। ओके। नेक्स्ट, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ये मेरा वर्क ग्रुप का कंप्यूटर है, ठीक है? वर्क हम्म। ग्रुप के मशीन पे जो यूजर क्रिएट होंगे ना, वो आपके लोकल यूजर होंगे। जो इस पे आप यूजर बनाएंगे वो लोकल यूजर होंगे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। एंड सेकेंड, जब आप क्लाइंट और डोमेन क्लाइंट की बात करते हैं ना, दिस इज डोमेन एंड दिस ऑल आर क्लाइंट। सर एक सेकेंड, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ ओके ओके, फाइन। जी, सॉरी। इट्स ओके। नाउ सी, so what happened in this case, like in case of work group, जितने भी सिस्टम्स आप बनाएंगे ना, जितने भी सिस्टम्स आप यूज करेंगे, दे नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ देयर ऑन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। And if you log in your machine with the help of local administrator, you can perform all the tasks. You are owner of this machine and you can manage anything. क्या क्या टास्क परफॉर्म कर पाएंगे? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना, एप्लीकेशन को डिलीट करना, हम्म। राइट? डिस्क को मैनेज करना, यू आर ऑनर ऑफ ऑल द थिंग्स, तो डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये सभी टास्क आप अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाएंगे। हम्म। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात करें डोमेन की, तो यहाँ पे आपने यूजर बनाया डोमेन मशीन पे, इस सर्वर कंप्यूटर पे आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ जीसीपी, विद नेम ऑफ हम्म। एडब्ल्यूएस, विद नेम ऑफ अलीबाबा, ठीक है? दीज यूजर्स यू क्रिएटेड ऑन योर डोमेन कंट्रोलर। आप इन यूजर का इस्तेमाल करेंगे, इन यूजर का आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? टू लॉग इन योर क्लाइंट कंप्यूटर। ये बंदा जीसीपी से लॉग इन करेगा, ये बंदा एडब्ल्यूएस से लॉग इन करेगा, ये बंदा हम्म। अलीबाबा से लॉग इन करेगा।
जी। ठीक है ना? मतलब डोमेन में यूजर आप बना रहे हो और लॉगिन कहाँ से कर रहे हो? क्लाइंट से लॉगिन कर रहे हो। ऑल गुड। जी। मीन्स इस मशीन का हार्डवेयर आपका है, इस मशीन का कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्क्रीन, टच पैड, ऑल द थिंग्स योर। बट इसके अंदर जो रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हम्म। आपके सिस्टम पे राइट क्लिक चले या ना चले वो डोमेन डिसाइड करेगा। आप ओके। कंट्रोल पैनल के आइकॉन देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे वो डोमेन डिसाइड करेगा। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज ऑन होगा, चलेगा, वेबसाइट ओपन करेगा या नहीं करेगा वो डोमेन डिसाइड करेगा, हम्म। विद हेल्प ऑफ जीपीओ या जो भी मेथड आप इस्तेमाल करो। जी। हम्म, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ये नहीं होती। वी कैन मैन डोमेन को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कंपनी के लिए। एज ए टेक्निकल कंपनी का ऑनर या सीईओ को हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि इफ यू आर ट्राइंग टू रन दिस टाइप्स ऑफ सिनेरियो, दिस टाइप्स ऑफ टास्क यू वांट टू परफॉर्म विद योर कंपनी, तो भाई ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को जो है ना, अपने एम्प्लॉयज को ना मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि वर्क ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा फंडा जो कि वर्क ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। You must हम्म। need to involve the domain controller in the environment, then you can control and manage all the client operating systems. ठीक है। ये चीज क्लियर है? जी। ठीक है, एक दिन में नहीं, धीरे 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 करके स्टेप में ये चीजें चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी कि डोमेन ये है, क्लाइंट ये है। क्योंकि अभी अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पैस सर्विसेज से, बट आने वाले टाइम पे हम आईएएस सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज पे भी टास्क परफॉर्म करेंगे, एडी वगैरह को इंस्टॉल करने का काम करेंगे। राइट? हम्म। इज दैट ओके? डेफिनेटली। जी। चलो, ये हो गया वर्क ग्रुप का डोमेन का पार्ट। अब बात आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो है पैस सर्विसेज। एंड इन केस ऑफ पैस सर्विसेज ओनली। एक्चुअली सर ऐसा है, एक्चुअली क्या मेरे को है ना 12:30 कहीं पे निकलना था। मुझे लगा था कि मैं शायद 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, बट सिंस आज हम लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो गए, तो हाँ मुझे एक्चुअली 12:30 पे कहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली मेरा भी कल लैपटॉप बूट हो रहा था। अपडेट्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ 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 जी। हाँ। मेरे नहीं, को बस मेरा एक मेरा चीज़। एक्चुअली क्या है ना, तो मैक में जो है लेटेस्ट अपडेट आया तो ये क्या करता है, कभी माइक बंद कर देगा, इनकी अच्छा, स्मार्टनेस सेम अगर कोई सेम टू हो सेम। ऐसा है, तो माइक बंद कर देगा, कभी कभी टीम्स को क्रैश करना स्टार्ट कर देगा, कभी दूसरे सॉफ्टवेयर एग्ज़ैक्टली। को बंद कर देगा। सो मतलब इट्स मैंडेटरी भाई, आपको अपडेट करना ही करना पड़ेगा, एंड मेरे इट में भी रिक्वायर्ड यही मोर हो देन रहा है। 2 आवर्स। करेक्ट, करेक्ट। मैंने भी सुबह जब ऐसे ही स्टार्ट करा था थोड़ा रिवाइज़ करने के लिए, तो मेरे कुछ ड्राइवर अपडेट्स वगैरह आए थे। अभी मैंने हम्म। रीस्टार्ट नहीं करा है अपने लैपटॉप को, तो मेरे भी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो हम ये मैं आज यहाँ पे देख लेता हूँ, क्या हम ये नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू कर लें इसे? बिकॉज़ श्योर, मेरा बट एक हार्ड हार्ड स्टॉप था। ठीक है ठीक बस है। मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि वो जो लाइसेंसेस वाला था एवीडी में, वो हम्म, आपने पता करा था? मैंने चेक किया, एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द एसएलए ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जब भी आप इमेज का सिलेक्शन करते हैं ना, एवीडी में जब हुँ, आप इमेज सिलेक्शन करते हैं तो मल्टी सेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब आप वर्चुअल मशीन परचेज करते हो तो उसके अंदर जो वीएम का लाइसेंस रहता है, उसके उस लाइसेंस के साथ आपके आरडीपी के लाइसेंस इन्वॉल्व रहते थे, तो इन्वॉल्व रहते हैं। आई एम गोइंग टू कॉपी द डॉक्यूमेंट्स और मैं वो आपको व्हाट्सएप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। एक मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, है ना? प्लीज। E3, E5 और उसका F5 वाला जो है ना, F3। उस